Okay, so hi everyone, and I'm going to give you the topic of GD today, and it's going to be related with digital India. That is the cashless economy. It's a success or failure. Do you have to count it out? A cashless economy that is a success or a failure. Now, in this group discussion, this is a topic, and you guys have to first of all, I'll give you some of the tips how you need to do a group discussion. It is about the initiation. So it would be like, good morning, everyone. The topic of today's discussion is whatever the topic is, right? I told you the topic's name. Then you have to tell that related to some of the economy that we have seen. Introduction one, that we have seen a wide trend, or you can say the shift has been there from a cash to cashless we have become. That is, since ages, we were, you can say, exchanging. There was a barter system, and then we started exchanging with the terms of money. Monetary system was there. And then the very relevant system was the digital means. That is, the cashless economy that came to boot. Then you have to say it out that what is the meaning of that introductory line you gave. Then you have to give a generic introduction to both the sides, and then you have to give your relevant point. Are you in the favor that you think that the cashless economy is going a great success, or are you saying that the uneducated or the illiteracy level or what level of the things are there, and due to which it has become a major failure in our country, right? Then if you will open the house for discussion. After that, you will see it out that every person will give their point of views, either in the success rate or in the failure rate. Then it is not a debate. You can shift your points. First, you can be talking about the success things, and then you can talking about the failure things. So it is up to you guys which direction you have to take. Talk about very relevant examples, some of the banking systems you could measure, or some of the, you can say, policies. Where do you see the cashless? What are the drawbacks you see in the cashless? So everything you have to discuss in a wide dimension. Do not get digressed. Use any language, Hindi use karo, English use karo, up to you, but be comfortable in whatever you speak. बहुत लंबे पॉइंट्स नहीं देने हैं, सिर्फ रेलेवेंट क्वालिटी पॉइंट पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस मत करना. आई एम रिपीटिंग इट आउट. और ज्यादा भी मत बोलना इन टर्म्स ऑफ आउट कटिंग द पर्सन की मैं ही करूं ज्यादा. ओवर एंथुसियास्टिक होके भी कभी जीडी में पार्ट मत लेना. दैट इज अ नेगेटिव ट्रेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, right? When you conclude, you have to see it out like it depends on us, that we are like anything can be a boon or a bane at the same time, but it depends on the users, it depends upon the economy where we are taking the trend. So you have to give a very neutral introduction and a neutral ending when it is on the two sides, right? Listen, be very attentive. Examples बहुत अच्छे देने हैं, common examples देने की कोशिश करना. Think about कोई भी अगर आपने terminologies देनी है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी हो चुकी है डिजिटल इंडिया में, whatsoever if you have to mention. If you're very clear, only then mention the facts. If you're not clear, go for the approximation. Approximation में भी doubt है, मत बताना. Generic examples में आ जाना. Clear about it? We'll have a discussion about some of the points at the end. And I think, Ramakant, you can introduce the topic, right? Yes, ma'am. Raj, you can conclude the topic. It is okay for you guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Be very good in introductory and conclusion part. और conclusion में ये भी mention कर सकते हो कि कोई discussion में बहुत अच्छा point लगा था किसी का. So you can say that yes, we had a great discussion, and this is quite relevant because digital means and everything has been progression. Wherever Narendra Modi ji has been progressing since years, like we are to go for digital mode, right? Digital India. So, but yeah, there are some drawbacks which have been discussed and some of the good points also. We have to take a stand how we can improve the methodologies, and some of the good points were given which we discussed today. वो points बता सकते हो, बोल सकते हो उस time पे अगर याद आता है. Otherwise बहुत लंबा भी मत कर देना, सारी discussion नहीं wrap up करनी है. कुछ points बता दिए and then you can end it out. Clear? Okay, Yes, guys. Okay. So you have 143. It's by my side. I'll give you 2 minutes for that. Or you want 3 minutes? It will be approximately 2 to 3 minutes I'll be giving you. You can justify your points, write as many dimensions as you can, right? And then we will have a discussion for approximately 12 to 15 minutes. Okay? Great. Go, guys. Yes, ma'am.
Yeah. Okay, Ramakant, you can start. Yes, ma'am. Hello, everyone. Thank you for giving me an opportunity to start our group discussion. Our today's group discussion topic is cashless economy is a success or failure. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैशलेस का मतलब यहाँ पर है कि फिजिकल जो मनी होती है आपके पास, क्या हम लोग उसका इस्तेमाल करें या फिर जो हम लोग ऑनलाइन मीडियम्स होती हैं, सॉफ्ट कॉपीज होती हैं, उसका इस्तेमाल करें, तो कौन से ज्यादा सक्सेस और फेलियर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। मेरे हिसाब से हमें क्या लगता है कि जो कैशलेस इकोनॉमी को हमने प्रमोट किया, हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके प्रमोट किया है, उस तरीके से वो काफी अच्छा सक्सेसफुल साबित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स के, स्ट्रीट वेंडर्स से लेके बड़े बड़े शॉप्स तक के हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का मोड देखा है। तो इस टॉपिक पे अब हम लोग पहले सक्सेस के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके फेलियर के बाद, उसके बाद हम लोग उसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हम लोग हटा सकते हैं जिससे हम लोग फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सके। विद दैट आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर अदर्स। देखिए मैं यहाँ पे Yeah, okay. एक पॉइंट I ऐड want करना to add a चाहूंगा, point कि लाइक जैसे अपना टॉपिक है कैशलेस इकोनॉमी सक्सेस और फेलियर. So I am towards the success side right now. We have seen कि ये टाइम सेविंग होता है यूथ के लिए. Like earlier what used to happen कि बैंक में क्राउड रहता था काफी, कैश निकालने के लिए इसके लिए काफी लंबे लंबे लाइंस में लगने पड़ते थे. वो अभी काफी कम हो चुका है क्योंकि कैशलेस इंडिया के तरफ ये अपना कंट्री बढ़ रहा है. yeah, That is exactly. one I of should the also success add of one that. more. Also, it is very physically convenient to carry this kind of a system. Instead of a money or cash, it's very convenient for the common people, common person to handle this kind of a system. Plus, there is always a, I mean to say, all the vendors of or the shopkeepers, they have also got a chance, to get some, some amount of slight amount of profit from that payment system like Paytms and GPays, etc. So it's a great advantage also. Yeah. मैं एक Yeah, पॉइंट ऐड just करना like चाहता हूँ right इसी now पे। I talked about जैसे youth. कि हम लोग देखें कि जैसे कि अगर हम लोग का कैशलेस ट्रांजैक्शन हुए हैं तो देखे हैं कि जो ब्लैक मनी का ट्रांसफर है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि पहले क्या होता था कि Yes, yes. कैश के थ्रू ब्लैक मनी का ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट आई रख सकती है हर एक पर्सन पे जो कि Mhm. बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो कि Yes. ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसको ट्रेस करना आसान हो गया है। Yeah, तो so ये एक chances of इकोनॉमी के लिए बूस्ट corruption मिल are गया। less. Chances of corruption Yeah, are less. जैसे Exactly. यस yeah, just now like I talked about कि यूथ के लिए किस तरह बेनिफिशियल है. सिमिलरली आजकल देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐप्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि किड्स के लिए बन रहा है, जो कि Mhm. पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड को या बच्चे को वो ऐप यूज करने को दे सकते हैं और उसी में जो भी पैसा है वो ट्रांजैक्शन वो बच्चे करेंगे. तो इससे एक पेरेंट्स को भी एक मौका मिलता है अपने बच्चों जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको चेक करने का कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं. कैश Mhm. देने के समय क्या होता था वो ट्रैक कुछ भी नहीं कर पाते थे, Yes. वो कहाँ जा रहा है पैसा क्या हो रहा है. तो वो एक पेरेंट्स को भी एक सेंस ऑफ कंट्रोल दे रहा है इसमें. Yeah, so this cashless economy has also opened up a new chances of employment, because these all news companies, Paytms and GPays, they have, I mean, they are um, all the top MNCs. So they have also given the common person a chance for human, I mean to say, to get explode in such a direction and to get employed. मैं मैं इस पे इसमें एक एक और पॉइंट पॉइंट ऐड ऐड करना चाहूंगा कर कि जब पहले क्या होता था, जब हमारे पास कैश जो फिजिकल फॉर्म में होती थी, तो आरबीआई को बहुत सारे नोट्स भी प्रिंट करने पड़ते थे, जिसके कारण Mhm. आरबीआई के पास बर्डन रहता था। और उसके अलावा हम लोग को बहुत सारे जो उसके लिए जो चीजें चाहिए, जैसे अगर आपको पेजेस चाहिए तो उसके लिए ट्रीज और इन्वायरमेंट को भी काफी हर्ट करना पड़ता था, जो कि अभी हमने देखा है काफी रिड्यूस हो गया इसके कैशलेस इकोनॉमी के कारण। मैं Yes, I should रमाकांत also add एक one more point to this. yeah During please. travel, we have no fear of losing money. When you carry cash during long journeys, you have a fear of the Theft. and डेफिनेटली उस मैं टाइम एक में पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ पहले इस पे ज्यादा कि पैसा रहता था तो उसको लेकर ट्रैवल करना थोड़ा डर लगता था. अभी के टाइम में हो गया है कि वो फोन में ही है तो उसका उसका फायदा है. बट इसी के साथ वी कैन सी कि फ्रॉड्स भी काफी बढ़ रहे हैं. लाइक जबकि फोन में पैसा आ चुका है तो जो मतलब ओटीपी शेयर करने के थ्रू या जो भी है इससे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉड काफी बढ़ रहा है जनरली बैंक्स नेट बैंकिंग है ये सब के थ्रू. तो ये एक लॉस भी है इसका. उसके मैं एक उसके पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ एडवांटेज में कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एडवांटेजेस हम जैसे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग देखते ये हैं कि उसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने रूरल एरियाज में होते हैं या फिर आउटस्कर्ट एरियाज में
कभी कभी अर्जेंसी हो जाती है पेमेंट करने की, तो हम लोग के को जैसे कि बैंक्स नहीं मिलते हैं, एटीएम मशीन्स नहीं मिलती है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रिमोट प्लेसेस पे भी अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। But बस that requires internet, but या that बस requires internet Wi-Fi. In the remote areas, We first see of all, that you have to set up sometimes the it's internet. not even good to have like cashless economy, because sometimes ऐसा हो जाता है नेट नहीं चल रहा उस टाइम, कभी भी कैश ढूंढ रहे होते हैं हम क्या लोग ढूंढ रहे होते हैं कि सर? कैश मैं दो इसमें यार एक तुरंत देख के। I want to add one crucial point. मैं एक नया एंगल देना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो कैशलेस इकोनॉमी आने के बाद से बहुत इम्प्रूव हो गया है, बहुत आसान हो चुका है। Because we get all the money transferred directly into our bank. So these demat accounts, all these things, they have made the stock trading very easier for us. Yes, मैं I इसमें should एक और also पॉइंट ऐड add करना one more चाहूंगा point कि to this, that ओके the राजू government welfare schemes like some insurance policies from the government, and these are also directly transferred to the person who is needed. In the मैं डोला मैं previous, राजू इसमें एक पॉइंट ऐड हाँ, मैं मैं डोला इसमें राजू एक पे एक पॉइंट ऐड पॉइंट करना ऐड करना चाहूंगा। चाहूँ। ओके ओके। ओके मैं गो अहेड नीलेश। हाँ, मैं डोला राजू पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग कोरोना पीरियड में देखा था कि पीएमओ से हम लोग हर गरीब लोगों को 1,000 रुपये या 1,500 पे अप्रोक्स पे करना था। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन इजी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय कोरोना पीरियड में हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो एक जैसे अकाउंट नंबर अवेलेबल था, तो पीएमओ से हर बैंक अकाउंट में प्रॉपर पैसे पहुंचे हैं। तो वो एक बहुत ही उस टाइम पे एक क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो बहुत ही बड़ा फायदेमंद साबित हुआ था ये Yeah. पोर्शन। मैं इसमें एक देखिए पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमने बोला कि पेरेंट्स के लिए मॉनिटरिंग अच्छी होती है, वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि बैंक्स के लिए भी मॉनिटरिंग काफी आसान हो गई है और साथ साथ यूजर्स के लिए भी। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग पासबुक को प्रिंट करवाने के लिए भी बैंक जाते थे तो हमें लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, उसमें हम लोग की टाइम कंज्यूम होता था। आज हम लोग अपने मोबाइल में तुरंत देख सकते हैं कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ कौन सा गया है, और मॉनिटर इसको करने के लिए आसान होता है। but there इसके is a slight साथ I mean एक to say और चीज हम drawback लोग that देख पा these रहे हैं kind of कि systems can be easily hacked. ऑनलाइन हैकिंग का जो जमाना है, इस जमाने में फ्रॉड का जितने भी फ्रॉड्स होते हैं या फिर आपका जो डेटा है, देखिए कोई भी हम सिस्टम यूज करते हैं उसका हमारा जो आई मीन टू से प्राइवेट डेटा होता है डायरेक्टली उससे लिंक्ड होता है। सो इफ दैट सिस्टम इज हैक्ड, ऑल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी हैक्ड। सो दैट्स आई मीन टू से अ चैलेंज फॉर अस। एक और इसमें अगर सक्सेस हम का लोग पॉइंट फेलियर एक ऐड करना चाहूंगा, जबकि मेरे को दिख रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मनी हो जाता था, या नोट फट गया, या फिर कोई पैसा फट गया, या फिर धुल गया, या जो भी ऐसा हो गया, इसके वजह से क्या होता था, वो जो मनी है वो मतलब अब उसका वैल्यू नहीं रह जाता था। वैल्यू नहीं। ये अब नहीं हो रहा है कैशलेस इकोनॉमी की वजह से। तो ये भी एक फायदा मेरे को दिख रहा है। इसमें सो मैं एक तो फिर फेलियर में एक पॉइंट मतलब ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ वेंडर्स होते हैं, जब उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, फिर मोबाइल की सर्विसेज से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो वो कभी कभी ऑनलाइन सर्विसेज को ओपन नहीं कर पाते। पर क्या होता है, हम लोगों को कि ऑनलाइन ही पेमेंट करना तो था, हम उनकी जगह किसी और वेंडर्स के परे चले जाते हैं, तो कंटिन्यूसली उनका जो प्रॉफिट या फिर जो बोल सकते हैं उनकी बिक्री होनी चाहिए थी, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑल या मैं इसी I पे एक should पॉइंट also ऐड add करना one चाहता more हूँ कि challenge. सिमिलरली एक जस्ट पॉइंट ऐड लाइक करना वी चाहता हूँ टॉक्ड कि अबाउट जैसे कि कि आज के किड्स को ट्रेंड में कैसे क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है। जैसे क्रिप्टो या करेंसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर पाती है कि मनी किसने इन्वेस्ट किया और किसको कितना रुपए मिला है, तो कितना टैक्स लगना चाहिए, उससे कोई कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है गवर्नमेंट ट्रेड या ट्रेड में बहुत हैंडल करने में सिचुएशन को। मैं नीलेश की बात में एक जस्ट लाइक बोला, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जो जो क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें हैं, आई मीन टू से यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है। एट द सेम टाइम दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्रमोट द सेंस ऑफ गैम्बलिंग इन द यूथ। द सेंस ऑफ गैम्बलिंग इज आल्सो ट्रू। दैट्स आई मीन टू से इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव point of these kind of things of or these kind of payment I mean to say this cashless economy. जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि ये किड्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, यूथ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, सिमिलरली वी शुड आल्सो टॉक अबाउट कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है उनको कैसा इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि उनको काफी प्रॉब्लम आता है टेक्नोलॉजी या फोन को लेके। तो ये एक उसका फेलियर है कि उनको बताना होगा, उनको सिखाना होगा। तो उनको हर जगह काफी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक लॉस है इसका। Yes, I should also add one more challenge to this. Yeah. If the person is not aware of these things, means there was a chance to phone call to someone, they will tell the OTPs and everything.
Mm-hmm. The person is not aware of this, they will share the OTPs Yeah. to others, So then they have a phishing loss of attacks money. increased. Yeah, Dola, I agree with you that the phishing attacks they increase with the help with the I mean to say with the coming of cashless economy. मैं I हर्ष agree एक with बात you. से ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हर्ष ने गैम्बलिंग का एग्जांपल दिया था, तो आजकल जैसे कि हम लोग को एप्स दिख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, मैं नाम नहीं Mm-hmm. लेना चाहता हूँ, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड हो या फिर अदर एप्स हैं जो कि अब बच्चों के पास भी एक्सेस हो गया है पेमेंट करने का, तो वो गैम्बलिंग में इजी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि पहले बड़े लेवल पे होता था तो छोटे छोटे लोगों के पास उतना एक्सेस नहीं था, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। वो एक तरह का गैम्बलिंग ही है कि आप पैसा Yes. लगाओ तो बहुत सारे पैसे लॉस्ट हो जाते हैं बच्चों को, और इससे इससे पेरेंट्स भी कभी कभी ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि कैसे जा रहे हैं पैसे। Yes, Yeah. they like Dream 11 and Yeah. there was a app Dream 11 and Rummy. There was a chance that childs can participate in the. So yeah. So the transfer. One more thing. I want to add one Yes. important point. Yeah, thank you. That with the coming of cashless economy, the transfer of money is not regulated by the parents or by the family. How our child is using that money, they cannot exactly regulate it. With the cash, जब कैश का टाइम था तो बच्चे अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट कैश मांग लेते थे, तो पेरेंट्स के पास कोई अकाउंटेबिलिटी थी कि वो उस पैसे को कहाँ यूज करेंगे। अब वो चीज हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी क्या हो गया है कि हम लोग को जब पेमेंट बहुत इजी हो जाता है तो हम लोग उतना मेंटली सोचते भी नहीं है कई बार कि पेमेंट करने से पहले हम लोग कई सारी अननेसेसरी चीजों को भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग किसी अमेजोन या फिर किसी ऐप पे गए और हम लोग को लगा कि ये चीज खरीदनी है तो तुरंत पेमेंट करके हम लोग उसको परचेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक गलत इंपैक्ट डालता है क्योंकि अननेसेसरी इसमें थिंग्स हम लोग की इंक्लूड होते जाती है। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि वेंडर्स या फिर किसी पर्सनल एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए, मतलब वेंडर्स के जो इकोनॉमी जो भी पैसे आ रहे हैं या उनको ट्रैक करने के लिए उनको इजी होता है, तो वो लोग देख पाते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस जा रहा है। ये सब उनको ट्रैक करना काफी इजी हो गया है कैशलेस इकोनॉमी की वजह से। ये भी एक फायदा है। एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फेक ट्रांजैक्शन बहुत चल रहा है। जैसे कि आप कोई आदमी जाता है, कोई पर्सन जाता है शॉप पे, वो पेमेंट करता है, तो इस तरह के भी एप्स आ गए हैं जो वो सेम इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं पेमेंट के बाद वाला, सेम नाम भी आ जाता है। तो उस तरह का इंटरफेस जो क्रिएट होता है तो सामने वेंडर को लगता है कि पेमेंट हो गई, लेकिन एक्चुअली पेमेंट नहीं होती है। उसका सॉल्यूशन भी आया है कुछ जो कि अनाउंस, चांसेस मतलब नोटिफिकेशन ये सब अनाउंस करता है, वो उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है। या वो भी एक चीज। देखिए, अब हम जैसे हमने यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस के बारे में बात करा है, लेकिन अब हमें थोड़ा इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहिए कि हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन एडवाइस दैट देयर शुड बी अ रेगुलेटरी ऐप that regulates the transactions using all these all these UPI apps. तो इन UPI apps के ऊपर एक रेगुलेटरी ऐप भी होना चाहिए जो ये चेक करे कि इनमें कोई फ्रॉड हो रहा है, क्या कोई फेक ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमने क्या किया, एप्स को डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया है, तो अब क्या होता है पूरा अमाउंट हम लोग को डायरेक्टली ट्रांसफर भी हो जाता है। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम लोग कुछ अमाउंट रखें और उसको ऐप के थ्रू यूज करें और बैंक के थ्रू हम लोग को उसको डायरेक्टली ट्रांसफर ना करना पड़े, जिससे हम लोग का हैकिंग होने का जो खतरा है वो कम हो जाए बैंक के थ्रू। Yes, I should also add one more point that some childs they can create a phone pay without telling to their parents. They directly access to the money. हाँ, तो इसके लिए हम लोग एक लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन में लिमिट की पॉसिबिलिटी होती है, तो पेरेंट्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं फोन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी, तो उस पर एक लिमिट हो सकती है, पॉसिबल लिमिट कि आप इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उससे सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है कि अगर फ्रॉड भी हो रहा है तो वो उस लिमिट से क्रॉस ना हो। और देखिए, इसमें एक चीज मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट सम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। The Ministry of Information and Communication Technology, they can bring some policies and schemes which will ensure that our private information never gets hacked while we are transferring the money via any cashless app.
इसके साथ हम लोग एजुकेशन और लेवल पे, स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल में भी ये ऐड कर सकते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाए और उसका क्या ड्रॉबैक्स हो सकती है और किस तरीके से फायदा लिया जा सकता है। तो हम लोग इसको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करके काफी प्रॉफिट कर सकते सिमिलरली यही हम अपने एल्डर सिटीजन्स को भी सिखा सकते हैं ताकि वो कैसे यूज करें, उनके लिए ये कैशलेस इकोनॉमी को यूज करना काफी आसान हो जाए। इसका अवेयरनेस और ये फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए। इसी में एक पॉइंट और ऐड है, जैसे कि हम लोग ने बात की थी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है कहीं कहीं प्लेसेस पे। तो अगर हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर प्रोवाइड कर देते हैं रूरल एरियाज में और ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन को और बढ़ावा मिल सकता है और बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सकता है और ये कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी में। Yeah, I think with the coming of 5G technology, the cashless economy will spread in the remote areas also, and the usage of this cashless economy will rapidly increase. या डेफिनेटली। और हमने देखा है कि अगर मान लो कोई पीपल ब्लाइंड है या फिर कोई है, उसको अगर कैशलेस इकोनॉमी का यूज करना नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एक जरिया बनाना चाहिए। जैसे हम लोग ब्रेनली पे यूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो वैसे उनको लोग पेमेंट के लिए कुछ नया, कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी चाहिए जिससे वो भी पेमेंट को इस तरीके से प्रमोट कर सके ऑनलाइन। Yeah. मैं एक ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने पॉइंट ये डिस्कस किया था कि यूपीआई आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि यूएई और इंडिया में रुपीस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर श्रीलंका और इंडिया में भी बॉन्ड साइन हुआ है कि यूपीआई इंटरफेस पेमेंट का भी यूज करेंगे, श्रीलंका को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग के रुपीस की जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी इंक्रीज होती है। That's great. You can conclude. Okay, friends, I take the opportunity to conclude the discussion. We have a very good discussion, and we come with a conclusion that it will have a success somewhat. And the Neelesh tell that it have a chance to reduce black money. And one more point is cryptocurrency. And Naveen will share you that the parents can monitor how the child can use the money. And Harsha says that about hacking. And Ramakant says that you have to take some steps regarding the use by the blind people. And we will talk about the solutions also. We need a regulating body, and we should increase the awareness for the people who know about the smartphones and the senior citizens. And the government also takes some steps about that. And in my personal opinion, there has a both positives and negative sides. For example, when you go for a remote areas, it is a difficult until we have provided signals. But we have to work for it, and cashless economy really good to reduce the black money and corruption, these type of things. Thank you. Okay, great. Now, before I start with the discussion about the topic, see what comes as a problem in the topic is you start repeating it out. बच्चों पे तो बच्चों पे शुरू हो गए सारे जाने, ठीक है, कि सभी ने चिल्ड्रन के लिए उसके बाद एप्स का डिस्कशन करना शुरू कर दिया। टॉपिक किस चीज के था? इट वाज नॉट अबाउट चिल्ड्रन, इट वाज अबाउट योर कैशलेस इकोनॉमी, इट इज अ सक्सेस और अ फेलियर। और रामाकांत, द वे यू स्टार्टेड, वहां से ही गलती स्टार्ट हो गई थी। देयर वाज अ पर्सन दैट ही स्टार्टेड विद कि मुझे क्या करना है, पहले हम डिस्कस करेंगे सक्सेस, फिर हम डिस्कस करेंगे फेलियर, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे ठीक करना है। ये नहीं होता बच्चे, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर, इट इज अ डिस्कशन। यू कैन, एवरीवन हैज एन ओपिनियन। वो स्टार्टिंग, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया, तो आपके नेक्स्ट ही स्टार्ट किया था नवीन ने, ही कुड डायरेक्टली से अबाउट द नो। जैसे आई थिंक बीच बीच में आया भी है, किसी ने ना बोल लिया है, ठीक है, तो वो ये नहीं है कि आपने ये बोला कि हम इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे। यू आर नॉट टू टेल द पैटर्न, जस्ट टू क्वालिफाई इट आउट कि व्हाट इज द डिस्कशन फॉर द टॉपिक। और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और बेटर हो सकती है, राइट? यू जस्ट स्विच्ड इट डायरेक्टली to that the cashless economy, or cash hota kya hai, ye kya cheez hoti hai. I even gave you the example that the economy of India is progressing. We're in a developing country, and we have seen the vast shifts. First, there were barter system, and then it actually started with the, you can say, monetary system. Now it is a high time where we are led by Narendra Modi. So whatever you told, that was justified, लेकिन वो थोड़ा पैटर्न गलत था। और उस तरह से उसके बाद जब आप कैशलेस की बात करते हो, सबसे पहले तो ये करो कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है फंड्स की पूरी कंट्री में बहुत इजी हो सकती है। तो स्टार्ट एट द वेरी सिंपल पॉइंट्स कि द ट्रांजैक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, यू हैव टू बी एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री और एनीवेयर इन दिस इंडिया। So the means of that transaction has become very easier for us, right? Then it is one like transfer of money easy हो गई है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा आ चुकी है। कैसे ज्यादा आ चुकी है? Now we have a control in this thing.
नॉट ओनली द बैंक सिस्टम बट एवरीवेयर हैज अ कंट्रोल। अगर आप इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे तो बैंकिंग सिस्टम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खराब भी तो कर रहा है, तो उसको अकेला बैंकिंग सिस्टम या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मत करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। देन इट इज ऑल अबाउट कि जैसे आपने बोला ब्लैक मनी को कर्टल करता है या दीज आर द रिस्पॉन्सेज, दैट वाज अ गुड पॉइंट, राइट, कि ब्लैक मनी जो है, इलीगल ट्रांजेक्शन है, वो रिड्यूस हो गई है। उससे करप्शन को चेक करें, करप्शन को ले आते, वो चेक करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये चीज, ठीक है। जो भी अब जैसे आई वन ऑफ यू इवन टोल्ड, आई थिंक रामाकांत ने बोला, कम टू यू ईच वन ऑफ यू, कि करेंसी की प्रिंटिंग के लिए जो कॉइन्स की प्रिंटिंग वो होती है, ये सारा जो है प्रिंटिंग का पैसा है, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी नोट्स को रोज लेकर आना, एटीएम में भरना, ये सारा क्या है, बच रहा है। तो एक्सपेंडिचर अगर आप बिजनेस लेवल पे देखोगे, इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे, इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो कैसे हो सकता है, आपको एटीएम में जाना पड़ता है, तो एटीएम में अगर आप ट्रांजेक्शन कुछ अमाउंट से ज्यादा कर लेते हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट, तो आपका वो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। बिजनेस लेवल पे अगर आपने सपोज करेंसी को रखा है इन एन ओपन स्पेस, तो आपको उसको ठीक रखने के लिए, मतलब आपको रेगुलेट करने के लिए में आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह से आपको बताना था। अब इसके बाद कस्टमर्स को फिजिकल कैश के लिए वरी नहीं करना पड़ेगा कि जब भी उनको कोई कैश चाहिए तो उनको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर देम, कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब अगर आप ये कर सकते हो कि जो डिजिटल पेमेंट्स है वो परफेक्ट बन चुकी हैं, किस तरह से आप कहो, ऑनलाइन शॉपिंग, नाउ यू डोंट हैव टू विजिट द स्टोर्स। पहले आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते थे किस स्टोर में जाके शॉपिंग करनी है, you have just to surf it out, डिजिटल पेमेंट कहीं पे भी खोलोगे, द इजियर फॉर कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो चुका है फॉर द कस्टमर्स, ठीक है, तो कस्टमर्स में ये भी चीज आ सकती है। देन इट इज ऑल अबाउट, मैंने आपको बिजनेस और उसका कस्टमर का कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो चुका है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। नेगेटिव पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, तो कोई लोग हैं जो रूरल एरियाज में है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो जब तक इन चीजों में बाहर नहीं आएंगे वो कैसे ये चीज को सीखेंगे। इवन योर पेरेंट्स माइट बी स्कैर्ड टू यूज सच मीडियम्स बिकॉज दे फील कि हमसे कहीं गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका पहले आ जाएगा जो लो इनकम वाले हैं, वो तो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे डिजिटल मीन्स को, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी को, थेफ्ट को अगर आप लगा लो, कंज्यूमर का साइबर सिक्योरिटी, इन चीजों में फंस जाओगे क्योंकि हर कोई को किसी ना किसी की तरह का कोई ना कोई कॉल, फ्रॉड, ईमेल, इस तरह के मैसेजेस आते हैं, एंड देयर मेनी पीपल हैव एक्चुअली गॉट ट्रैप्ड। तो एक डर बैठ जाता है, सपोज आपके साथ कुछ ऐसा हो, उसके बाद यू विल बी, यू कैन से वंडरिंग नंबर ऑफ टाइम्स कि मैं करूं ट्रांजेक्शन ऑनलाइन या ना करूं, ठीक है। सो एवरी वन ऑफ अस हैव मेट विद दिस। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, दैट एक्चुअली लीड्स टू इनएफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार हम शॉप पे होते हैं, लाइक इवन आई गो टू शॉपिंग एंड ऑल दैट, यू कैन रिलेट इट वेल। हमारा क्या होता है, आई हैव एन एसबीआई अकाउंट और समटाइम उनका फेलियर आ जाता है, एंड यू हैव टू गो, आप पेमेंट कैसे करोगे ऑन स्पॉट, यू डोंट नो हाउ टू पे बिकॉज आई नेवर कैरी कैश विद मी, नेवर। सो दैट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ मी कि मुझे कैशलेस पेमेंट करनी है। बट उसमें अगर मेरा फोन, one there was a time when I lost my phone and I thought myself so dependent because I didn't have the cash. I lost my phone, and what happened was that I had to depend on others because that is the negative thing which we carry. कैश ही नहीं है, ठीक है। तो इफ यू लॉस्ट योर फोन, इफ देयर इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, इवन दैट कैन लीड, अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, उस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा, देयर आर समटाइम्स सपोज यू गो टू अ शॉपिंग मॉल एंड देयर इज अ बेसमेंट एरिया, the network won't be there, how would you go for the payment options there also? तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको खराब करती है, ठीक है। अब आपकी प्राइवेसी इश्यू, तो ट्रैकिंग ऑफ अकाउंट्स का भी हो जाता है, जैसे अगर आप कस्टमर के फिल इन करते हो तो कुछ ना कुछ उनकी इम्प्लीकेशंस बाहर आने लग पड़ती है। गिव योर डिटेल्स टू समवन, कहीं आप सपोज कर लो you're working somewhere in a workplace also, also you have to give your information, every data has to be provided। वो डाटा मिसमैनेज भी हो सकता है, वो मैनेज डाटा भी खराब हो सकता है, उससे भी आपके कोई फ्रॉड्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें बैकवर्ड लोगों की थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और ये जो अपुअर लोग हैं, अब ये तो नहीं कहोगे कि हाँ देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली बेगर्स एंड दे आर गेटिंग कि हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दो, दैट यू कैन नॉट सी इट आउट, लाइक तो बैकवर्डनेस बहुत है, इलिटरेसी बहुत है, ये चीजें बहुत बढ़ चुकी है हमारे इंडिया में। देयर हैज बीन अ कॉन्टेक्स्ट एंड तो व्हाट इज दैट, इसके केसेस में जब तक ये प्रिवेल कर रहा है तो हमारा सक्सेस कभी बन ही नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ वी कैन नॉट गो कंप्लीटली डिजिटल इन दैट, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका, सेम वे आई टोल्ड यू, बिजनेस जो है उसमें आपका डाटा ब्रीच हो सकता है, प्राइवेसी इश्यूज ब्रीच हो सकते हैं। हमें मेन कंसर्न होता है ना कि आपका डाटा सेफ रहे, प्राइवेसी सेफ रहे।
बट अगर हम खुद ही स्प्रेड कर रहे हैं, हम खुद ही अपना बार बार नंबर दे रहे हैं कहीं पे या कुछ ऐसा रजिस्टर करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली योर डाटा विल गेट ब्रीच्ड and you always get unnecessary text and messages also. How your number gets leaked and how your number gets fetched by the organizations, different you can say shopping malls and all, तो नंबर कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है ना, कोई भी डाटा ले ले, आपको मैसेजेस करे, ठीक है, सिक्योरिटी की तरफ से बहुत ज्यादा। उसके बाद एक अगर आप यूज करते हो, इट इज एक आपके क्रेडिट कार्ड, ऑल दैट यू यूजेस, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो पीएसपीओएस सिस्टम कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अगर आपने वो मशीन देखी होगी इंसिडेंट, am I audible guys? Am I audible guys? Yes, There's a ma'am. network constraint. Okay. So Yeah. there are many times you will lose your phone, and sometimes there is a time when you are all okay from your side. It happened recently last week with me. We went to a you can say some shopping area, and what happened? We had our online system and all, and transactions were there. But जो उनकी मशीन होती है, पॉइंट ऑफ द सेल दैट यू कॉल, जहां से वो स्वाइप होता है, टच से होता है, वही खराब है, तो क्या करोगे? वो भी आपको इम्पैक्ट पड़ता है। तो देयर कैन बी इनएफिशिएंसी फ्रॉम देयर साइड आल्सो, इनएफिशिएंसी फ्रॉम योर साइड आल्सो। डिजिटली एक्सचेंज इंटरफेस करना डिफिकल्ट भी हो सकता है, बैंक का सर्वर लो हो सकता है, फोन चोरी हो सकता है, कैश में अगर नेटवर्क कंस्ट्रेंट हो सकता है, लोगों को इलिटरेसी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से हो सकता है। इवन यू कंसीडर योरसेल्फ, अगर मैं सिंपल चीज पे बोलूं, आप खुद को डिपेंडेंट मानोगे अगर आपके पास फोन नहीं है, बस उसी में आपकी सारी ट्रांजेक्शन, यू कैन फॉरगेट इट समटाइम्स। कैश होना इंपॉर्टेंट भी है। तो both the sides। और डॉलर आजू वन थिंग यू रिमेंबर, जब कंक्लूड कर रहे हो ना, सिर्फ जैसे नीलेश ने ये बोला, अकेले नीलेश को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन ओनली मेंशन दैट सम ऑफ द गुड पॉइंट्स पर इस तरह से आप डिस्कस करो। जरूरी नहीं है नाम ले लेकर बताना है, यू डोंट हैव टू फेच द रिजल्ट्स कि ये है, ऐसे है, ये ऐसे है, और पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो। इट हैज बीन लेस। Even I saw in the Ramakant also कि जब वो बोल रहा था बीच में, Ramakant you gave a point which has already been discussed, आप पहुंच गए बच्चों पे, ठीक है, दैट वाज ओके फ्रॉम वन साइड, एक बारी बोला ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेच कर रहे हो भाई कि हाँ अब हम ये करेंगे, बच्चों के लिए एप्स बना देंगे, मतलब थिंक अबाउट इट, व्हाट वाज द टॉपिक एंड वेयर आई एम हेडिंग, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। Yes, ma'am. आई गिव यू डिटेल्स अबाउट ऑल दिस। फर्स्ट रामाकांत का था, सेकंड नवीन का था। नवीन, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, टाइम सेविंग वाला, but the way you started, I am towards success side, that line was wrong. How you could start it out, Naveen, it could be that according to me, or you can say Ramakant, I justify your time, but my opinion is that it has been a success. It's been a success. Clear? So I am on this side. Ye nahi Sorry, I can't hear you. I guess there is some network problem. Naveen, can you hear me now? Naveen, am I I audible? think it's from there's a Naveen's side, constraint. ma'am. Yes, Yeah, there's ma'am. a Now constraint on Naveen. Okay, I'm coming to the next. Harsh, just ma'am, can you physically repeat convene the now? point. Yeah, Yes, sir. Naveen, the way you started, the point was very good, that it saves time and everything. But the way you started, that I am towards success side, वो line गलत है. Clear? उस तरह से start नहीं करते. You can even simply justify that according to me that cashless economy has been a success, and I can justify this with a great example, or with a simple example. So, for example, there that it saves plenty of our time. Clear? नीलेश, ब्लैक मनी, ट्रैश, दैट इज ऑल ओके। उसी में करप्शन वगैरह का थोड़ा इंक्लाइन कर देते, मेंशन कर देते, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते पॉइंट को, जस्टिफाई करते। नवीन स्टार्टेड विद द ऐप ऑफ किड्स, दैट इज वेरी गुड, उसने स्टार्ट कर दिया, बट व्हेन अदर गाइस meant on it, they started discussion, it was wrong from your side. Naveen gave a point. Clear? Ma'am, your voice is not. Contradictory Ma'am, point. your voice is chances. breaking continuously, so there is a issue with it. Now it is fine in the network. I think there's a network constraint. Yeah, right now it is fine, ma'am. Okay. So it is like, Abhi, I'm talking about Harsh. Harsh, can Yes. you hear me now? Yes, ma'am. Okay. So the way you started that, it gives you open chances of employment. This is a contradictory one. This is a very, you can say, because the people who are already working in the banking sectors and all that, if you go complete digital, what jobs they will have. Clear? जैसे मैंने बोला कि आपके बहुत पैसे बचते हैं जो आपके एक्सपेंडिचर को, प्रिंटिंग को, या आप लगा लो कि जो सेव करते हैं, अगर आपने गार्ड्स रखे हुए हैं, अगर वही सामान ही रखोगे, एटीएम मशीन से नहीं होगी, गार्ड किसको करोगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ वेरी दैट क्रूशियल, मतलब ये चीजें मत मेंशन करो। देन इट वाज
RBI printing currencies, it was given by I think Ramakant. That was point was good. Naveen का भी security frauds, ठीक है. Naveen जब start करो ना, अगर आप negative पे जा रहे हो, तो completely start with the negative. Do not go with the security line first and then go with the negative one. ठीक है. It should be like, I understand there are some of the negative or you can say concerns or frauds has become very prevalent. Cyber security and all. उस पे भी discuss करना start कर दें. वो ठीक है? जस्ट पहले वो उसका उसी से हाँ. रिलेटेड कुछ अच्छा पॉइंट बोला था तो इसलिए और ओके राजू पहला पॉइंट, हर्ष ने स्टॉक्स बाकी सब कुछ ठीक था. राजू योर पॉइंट व्हिच यू स्टार्टेड इट वाज ऑन वेलफेयर, सीधा पीएमओ पे आ गए. बाकी पहले नॉर्मल पॉइंट जस्टिफाई करो ना. ठीक है कि कोरोना के टाइम से ये हुआ था, हमने कैशलेस था तो हमने स्पेंड कर दिया. उससे पहले एक जेनरिक पॉइंट दो कि क्या होता है कैशलेस से, रूरल को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फायदा भी हो रहा है. अगर रूरल को पैसा मिल भी रहा है, यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे उनके अकाउंट्स में भी. ठीक है, वो चीजें को सारा सोच के बोला करो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट ना दे हम. रेस्ट आई थिंक सेम रामाकंद ने रिपीट बहुत टाइम बाद किया था बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए. हर्ष ने भी फिर हैकिंग फ्रॉड वो बोला ठीक था. न्यू चैलेंज, हाँ यहाँ से आपने चैलेंजेस पे डिस्कस करना शुरू कर दिया. दैट वाज नॉट नीडेड एक्चुअली. देयर कुड बी अ गुड डिस्कशंस ऑन सच पॉइंट्स ओनली. अपनी तरफ से स्ट्रक्चर मत बांधा करो. ठीक है, ये चीजें गलत हो जाती है. Naveen's point for senior citizens, that was very prevalent, very good one, because even we see in our families, you could give it an example that your parents are even afraid to use online mediums. They need to be learned, they need to be taught, and that is something even that they feel कि नहीं यार मुझसे गलती हो जाएगी, मुझे नहीं यूज करना. ठीक है, so some are the examples that you could see and that you could relate. Yes, it was fine. Whatever the points I gave you justified. Raju, थोड़ा improve करो, discussion थोड़ी participation ज्यादा करो. Ramakant, it is not about speaking, not at all speaking. बीच बीच में participation करो. Yes, ma'am. ठीक है, and when you participate, be very attentive कि उसी टाइम पे मैं drawback कोई बोल रहा है, कोई example की जरूरत है तभी दे दूं. ठीक है, Naveen's Yes, ma'am. points were good. हर्ष के थोड़े से controversial थे, वो discussion चाहिए. एंड नवीन सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसे करते हो ना, हेडर, उस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया करो. ठीक है, और नीलेश, इट वाज जस्टिफाइड, इट वाज फाइन फ्रॉम योर साइड आल्सो. क्लियर विद एवरीवन? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. चलो, टेक केयर गाइस एंड विल मीट टुमारो अगेन. ओके, टेक केयर, बाय. Thank you, ma'am. Okay, thank you.